Hi, dear students. How are you? I hope you are good. So, dear students, this is a request for you. Please stay home and save your life from deadly COVID-19. So, dear students, I want to tell you that in previous videos I discussed syllable and also audience profile and a short note on audience. So, dear students, in previous videos, we discuss syllable. So, dear students, I want to repeat once again in a short moment that is syllable, and after that, our today's point is paralinguistic features of voice dynamics, and this is nonsense of voice dynamics and the role of paralinguistic features in business presentation. So, dear students, after before starting these topics, I want to discuss once again स्लेबल. सो डी स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि वो क्या स्लेबल क्या होता है एंड स्लेबल की वर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, और कैसे भी वर्ड में हाउ कैन बी फाइंड दिस मीन्स वॉवेल कॉन्सोनेंट. हमने बताया था मोनोसिलेबलिक, फिर बताया था आपको बायोसिलेबलिक, फिर बताया था हमने पॉलीसिलेबलिक. सो डी स्टूडेंट्स, before starting next point, I want to discuss in a short way, in a short form. Syllable means a syllable may be defined as a unit. Sound means pronunciation, and with one vowel sound and with or without consonant sounds. A syllable is a vowel sound that is produced when pronouncing a word. So, dear students, now this is a syllable may be defined as a unit of sound pronunciation with one vowel sound and with or without consonant sound. A syllable is a vowel sound that is produced when pronouncing a word. So, and next is a syllable is a part of word that is pronounced with a single effort of the voice. So, students, जो syllable होता है किसी भी वर्ड का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको सिंगल में हम उसको प्रोनाउंसिएट करने की जो हमारी एफर्ट होता है वही हमारा क्या होता है, syllable होता है. So, students, now syllable are the ways to split words into speech sounds. So, students, जो syllable होता है एक ऐसा वे होता है वर्डों को स्प्लिट करने का जिससे हमारा स्पीच और साउंड और वर्ड्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, और उनके आधार पर, स्पीच वर्ड्स और साउंड के आधार पर अगर हम देखें तो वी कैन सी यू कैन सी syllable are divided in three types. First is monosyllabic, and second is disyllabic, and third is polysyllabic. And dear students, in previous videos I discussed in brief that what is the meaning of monosyllabic. Means, dear students, words with one syllable, that is on means vowel and consonant, and disyllabic means, dear students, with words with two syllables means upon, up, and on. So you can find this vowel consonant plus vowel consonant. So, dear student, now next is polysyllabic means words with more than two syllables, that is syllable, and you can see the example syllable also. So you can see this, this is the example of polysyllabic. So, the students, after the finishing this, यानी मीन्स लेवल के खत्म होने के बाद, इस लेवल पॉइंट को फिनिश करने के बाद, आई वांट टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, that is paralinguistic. Means paralinguistic features of voice dynamics, and this is the role of paralinguistic features in business presentation. So, dear students, it means, so what is the meaning of paralinguistic? So, dear students, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि पैरालिंग्विस्टिक होता क्या है. सो डी स्टूडेंट, लिंग्विस्टिक अगर हम बात करें, वर्ल्डली लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करते हैं, लिंग्विस्टिक इज द पार्ट ऑफ अ लिटरेचर, एंड दिस इज नोन एज ग्रामर पार्ट ऑफ लिटरेचर. सो डी स्टूडेंट्स, द लिंग्विस्टिक का मतलब होता है, जो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, व्याकरण. that is related, this point is related to linguistic. Means this is a type of literature and this is a type of subject. So here paralinguistic. So students, we discuss here paralinguistic means
Paralinguistic. So paralinguistic point is paralinguistic communication refers to the study of a human voice and how words are spoken. Paralinguistic features are non-verbal communication, vocal cues that help us to give urgency to our voice, the various features that are useful to understand the characteristics nuances of voice are. So dear students, this is long. Dear students, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे. सो डियर स्टूडेंट, प्लीज concentrate on this and please prepare these questions. Okay dear students, so I hope you get it. So paralinguistic communication students ऐसे सब्जेक्ट को रिफर्स करता है जिसमें ह्यूमन वॉइस को ये बताया जाता है कि आप उस वॉइस को कैसे स्पोक करेंगे. So paralinguistic features are non-verbal. So dear students, this is non-verbal communication. So you know what is the means of non-verbal. So dear students, that communication does not depend on words, that is known as non-verbal communication. So dear students, and vocal cues मतलब जो हम वोकल यानी जो हम अपने जो गले की हमारी लोरी होती है, वोकल होती है, कार्ड होता है, उससे जो हेल्प करते हैं यानी किसी भी अर्जेंसी वॉइस को बोलने के लिए, तो हमारा पैरालिंग्विस्टिक में आता है. और ये स्टूडेंट्स और द वेरियस फीचर्स दैट आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉनसेंस. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस इन नेक्स्ट. So first of all we have to discuss and we have to know what is the meaning of paralinguistic and how where we can see the example of paralinguistic. So students, आपने मूवी देखा होगा टैंगो चार्ली में आपने देखा होगा जो बोडोज के टाइम में क्या होता है, जो वॉइस प्रोड्यूस किया जाता है हीरो एक्टर के द्वारा. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरालिंग्विस्टिक बिकॉज दैट लैंग्वेज इज अ different language. Every person can't understand that tone because that tone is only related that person, and this is the type of communication that means that person, any person are there or not. If any person show that person does not produce अदर साइड्स वॉइस. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरालिंग्विस्टिक. जैसे आपने बहुत सारे लोगों बच्चों में देखा होगा आवाज डिफरेंट टाइप की आवाज निकालते हैं, कभी आपने विसिल बजाया, दिस इज आल्सो पैरालिंग्विस्टिक एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपने कबड्डी में देखा होगा रेफरी जो होता है वो विसिल बजाता है, तो विसिल इज द एग्जांपल ऑफ पैरालिंग्विस्टिक एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So dear students, so I hope you get it because this is the very useful example for you, and this example I will deliver in your class. This is the movie Tango Charlie. So पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन रेफर्स करता है स्टूडेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन वॉइस के, जो हाउ वो कैसे वर्ड्स को स्पोकन करता है, कैसे वर्ड्स को बोलता है. और पैरालिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स के फीचर्स ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वोकल कार्ड को यूज करके बोला जाता है और उसमें ऐसे बहुत अर्जेंसी वॉइस को यूज करके बोला जाता है. और स्टूडेंट, नाउ द वेरियस फीचर्स दैट आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो स्टूडेंट्स, अगर देखते हैं इस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए तो हमको इसके बहुत सारे पार्ट्स को समझना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी एंड सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एंड थर्ड इज रेट and fourth is pitch and fifth is articulation and third is pronunciation and seven is voice modulation. So after 8 number is pause. So dear students, 8 number is pause. So dear students, if you want to understand this paralinguistics, so you have to know what is the mean of quality and what is the mean of volume in paralinguistic and what is the mean of rate in paralinguistic and what is the mean of pitch in paralinguistic and also articulation in paralinguistic and also pronunciation in paralinguistic and voice modulation, and after that pause. So the students, these are 8 various types of paralinguistics. The students, if you follow these types of paralinguistics, in your speech, in your communication, so you can improve your communication skills and you can improve your voice and you can improve your personality development. So this student, you can improve your personality. So now next I will have to discuss. First is
quality. Sorry students, this word you are familiar this word because this is very famous word quality. जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी चीज लेते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचते हैं कि उस प्रोडक्ट में हमको क्वालिटी चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आपको हर प्रोडक्ट में क्वालिटी आप खोजते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that should be a quality in your voice, a quality in your communication. This is very important here. So dear students, I hope you can understand, yeah, you get it व्हाट आई एम टॉकिंग। दिस मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी चीज़ में अगर क्वालिटी खोजते हैं तो आप अपने वॉइस में भी क्वालिटी खोजेंगे, सामने वाले को भी खोजेंगे कि उसके वॉइस में क्वालिटी है कि नहीं। तो अगर हम पैरालिंग्विस्टिक में इस पॉइंट को देखते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस इज टोटली डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। सो क्वालिटी मीन्स क्वालिटी नेम ही स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वी डिस्कस हियर क्वालिटी। So now we discuss quality. Quality means it is a characteristics that distinguish one voice from another. So students, आपको पता है कि सारे लोग अनुराधा पौडवाल नहीं हो सकते, सारे लोग आशा भोसले नहीं हो सकते, सारे लोग सोनू निगम नहीं हो सकते, बिकॉज these person are very famous person, because this person have a great voice of quality, so they are very famous. Every person can't have this quality because this is a God gifted. So different आपने बोला होगा इनके वॉइस में खूब क्वालिटी है, क्यों है? बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी वेरी curious on that point, because their voice quality is very good, their voice quality is very nice. So dear students, नाउ इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहा है कि मतलब ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये डिस्टिंग्विश करता है यानी विभेद करता है किसमें, एक वॉइस से दूसरे वॉइस में। स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं तो हमारी वॉइस आपकी वॉइस से डिफरेंट है, आपकी वॉइस आपके फ्रेंड से डिफरेंस है, और आपके फ्रेंड की वॉइस किसी और फ्रेंड से डिफरेंस है। तो सारे लोगों का वॉइस एक दूसरे से डिफरेंस होता है और यही उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। एक बच्चे का वॉइस कितना अच्छा होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है, एक ओल्ड पर्सन की वॉइस की जो क्वालिटी होती है दैट इज वेरी डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज दैट वॉइस क्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अस एंड दिस हर और आवर वॉइस क्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम देम। सो डी स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस इन दिस, ईच पर्सन हैज ए यूनिक वॉइस एंड इट्स क्वालिटी डिपेंड्स ऑन इट्स रिजोनेटिंग मैकेनिज्म। सो डी स्टूडेंट्स, कह रहा है कि प्रत्येक पर्सन का जो यूनिक जो होता है वॉइस होता है वो यूनिक होता है और उसके क्वालिटी डिपेंड्स करता है उसके मैकेनिज्म मीन्स उसके वोकल कार्ड पर, उसके स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी पर, उसके कैपेसिटी पर, उसके पावर पर वो अपनी क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव कर सकता है। एंड द क्वालिटी ऑफ वंस वॉइस मे बी रिच एंड और रिसोनेट मीन्स स्टूडेंट्स, तो कह रहा जो क्वालिटी ऑफ वॉइस होता है मे बी वो रिच का मतलब डियर स्टूडेंट्स हियर नॉट धनी मीन्स अच्छा, और या बहुत ही अच्छा हो सकता है, या सॉफ्ट हो सकता है, एलरिंग हो सकता है, पतला हो सकता है, नेजल हो सकता है, हार्सी हो सकता है एंड इरिटेटिंग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो वॉइस की क्वालिटी होती है, बहुत लोगों की वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत लोगों की वॉइस की क्वालिटी बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत लोगों की वॉइस की क्वालिटी सिर्फ नोज में आती है, बहुत लोगों की वॉइस की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट होती है, सुनते बोलते कितना अच्छा बोली है। आई वॉन्ट टू लिसन एवरी टाइम दैट वॉइस बिकॉज देयर वॉइस क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस, देयर वॉइस क्वालिटी इज वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन in this time, because if your voice is very good, so you can get anything from your front person. So dear students, now we see second point. That second point is very important because this is very important for paralinguistic questions. Now we discuss volume. So dear students, what is the meaning of volume? So dear students, आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम कम कर, आपने गाना भी इसका सुना होगा, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप आज यहाँ देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आखिर पैरालिंग्विस्टिक में वॉल्यूम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो वॉल्यूम होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पैरालिंग्विस्टिक मीन्स, वॉल्यूम मीन्स आप जानते हैं आवाज होता है। सो स्टूडेंट, वॉल्यूम इज द लाउडनेस
or softness of the voice. So students, the softness and the loudness are totally depend on volume. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आपकी आपकी वॉइस का सॉफ्टनेस कैसा है, आपकी वॉइस का लाउडनेस कैसा है, वो आप पर डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पर। वो वॉल्यूम बताता है आपका कि आपका जो आवाज़ होता है वो लाउडनेस है कि सॉफ्टनेस है। एंड वॉल्यूम इज द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द वॉइस, एंड वंस वॉइस शुड ऑलवेज प्रोजेक्ट बट नीड नॉट ऑलवेज बी लाउड। राइट डियर स्टूडेंट्स, किसी का भी वॉइस हमेशा होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, और उसको ज़्यादा तेज होने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपनी वॉइस को तेज करते हैं तो आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो मैनर होगा, वो आपको रॉन्ग साइड में लेके जाएगा और आपके सामने वाले पर्सन पर आपका जो इम्प्रेशन होगा वो बैड होगा। सो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम क्वालिटी पढ़ने का कोई यहाँ बहुत फेमस पॉइंट नहीं है, बट दिस इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, दिस इज रिलेटेड टू योर बिहेवियर, and this is related to your communication. So this is very important for you here. So dear students, I hope you can understand, and also you can get it, and get it also. So dear students, please concentrate and please follow these points, because these points can improve your quality, improve your communication, improve your smartness, improve your skills. So this is very important for you. So and now third point is rate. This is rate. So this means not price rate. So this is the price rate, मतलब आप जो वर्ड्स की स्पीच बोलते हैं, मीन्स डी स्टूडेंट्स, बचपन में लोगों ने बोला है कि पहले आप किसी भी बात को सुनो फिर आप उसके बाद बोलो। तो अगर जब आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि आप सामने वाले की बात को सुनते हैं और फिर अपना जवाब देते हैं, तो सामने वालों को यह समझा जाता है कि आपके पास पेशेंस है, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिकॉज क्योंकि आप में दूसरे की सुनने की क्षमता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपके अंदर पेशेंस है। तो स्टूडेंट, रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, rate is very important, because if you follow rate, so you can improve your dynamic and attractive communication skills. So dear students, now this is rate, and rate means it is the number of words that one speaks per minute. So dear students, ये ऐसा होता है कि ये ऐसा वर्ड होता है कि जिसमें रेट एक ऐसा वर्ड होता है जिसके हिसाब से ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने वर्ड को स्पीक करते हैं तो कितने मिनट में आप कितने मिनट में आप कितने वर्ड्स को स्पीक करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके रेट पर। कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी यानी जो रेट होती है बहुत तेज होती है, तो जो वो रेट होती है तो जो लिसनर होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, दे कांट बी अंडरस्टैंड, बिकॉज आपकी जो रेट है यानी नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट है वो ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा होगा तो सामने वाले के समझ से परे होगा, फिर सामने वाले के समझ से परे होगा तो आपको बैड इंप्रेशन देगा, आपको रेटिंग बैड करेगा, फिर आपकी स्किल्स को वो दाग लगा देगा, ठीक है, वो आपकी कम्युनिकेशन को बताएगा बेहतर नहीं है। तो सो स्टूडेंट, वी हैव टू फॉलो दिस, इट इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वन स्पीक्स पर मिनट, मतलब एक ऐसा ये संख्या होता है रेट जो कोई भी पर्सन क्या करता है, एक मिनट में कितने वर्ड्स को बोलता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आल्सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम 80 to 250 वर्ड्स पर मिनट डियर स्टूडेंट्स। और जो रेट होता है सारे पर्सन यानी सारे पर्सन के रेट क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सारे पर्सन के रेट इक्वल हो जाएंगे तब तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि किस पर्सन का रेट कितना है और किस पर्सन का रेट कितना है। सो स्टूडेंट्स, एंड और ये भी डिपेंड करता है कि और ये कैसे वैरी करता है, ये वैरी होता है इसका पर पर्सन एक मिनट में कितना वर्ड्स बोल सकता है, ये डिपेंड करता है। ये रेट बनाया गया है कि 80 to 250 वर्ड्स मीन्स डियर फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन है एक मिनट में 80 से लेकर 200 शब्दों तक बोल सकता है, ये माना जाता है। अगर आप इतना बोलते हैं तो आपका जो क्वालिटी है यानी जो रेट की क्वालिटी है दैट इज वेरी स्मार्ट, दैट इज वेरी गुड,
ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये आप याद रखना, या क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो रेट होता है वर्ड्स फ्रीक्वेंसी का वो कितना होता है, तो ये आंसर शुड बी 80 टू 250, दिस इज योर आंसर। रेट कितना होता है एंड दिस इज रेट स्पीक्स पर मिनट, मतलब ये 1 मिनट में कितने वर्ड्स को बोलना चाहिए। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि आप 1 मिनट में 80 से लेके 250 वर्ड्स तक बोल सकते हैं, 250 वर्ड्स तक बोल सकते हैं, और आपको ये फॉलो भी करना चाहिए स्टूडेंट्स। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पिच। सो स्टूडेंट पिच, this is very important. So different rate and pitch are similar but not same, no similar, एक समान हो सकते हैं बट सेम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अगर हम रेट की बात करते हैं वहां पर वर्ड्स की बात होगी, और यहाँ पर जो हम करेंगे वो वॉइस के वेरिएशन की बात होगी, वाइब्रेशन की बात होगी। आपका मोबाइल में कॉलर ट्यून होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉलर ट्यून होता है, और एक होता है वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट भी उसी हिसाब से वाइब्रेट करता है बट उसमें डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर रेट और पिच में भी डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू गेट इट रेट, सो इफ यू आर concentrate so you can get pitch also, because pitch is also related to rate, pitch is also relate to rate। जैसे अगर हम बात करते हैं पिच की, तो पिच रेफर्स टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वॉइस पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स जो पिच होता है वो क्या होता है कि जो वॉइस होता है 1 सेकेंड में कितना वैरी करता है वही कहलाता है आपका पिच। मीन्स डियर स्टूडेंट्स जैसे हम बोलते हैं तो बोलने पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो राइज एंड फॉल होता रहता है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी राइज एंड फॉल होती है तो एक ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ डिपेंड करता है हमारे वॉइस वेरिएशन पर, यानी वॉइस पर सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना हमारा वॉइस वेरिएट करता है, कितना नहीं करता है। सो रीजन पिच रेफर्स टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वॉइस पर सेकेंड। मीन्स डियर स्टूडेंट्स कि वो ये बताता है कि जो आपका पिच है वो 1 सेकेंड में कितना वेरिएशन करता है। इट मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस कन्वेज वेरियस इमोशंस। सो डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ पिच ह्यूमन कन्वेज वेरियस इमोशंस। You can see examples. A person sometimes feel happy, a person sometimes feel sad, a person sometimes very happy, a person sometimes feel enthusiasm, and there are so many examples you can see in with you, and also in your friends, and also your family, and also your neighbors. You can see this is very very familiar examples. This is very very familiar because pitch refers to the number of vibration of voice per second, and also next line is the rise and fall of the voice conveys various emotions। तो राइज एंड फॉल होता है वॉइस का, वो कन्वे करता है आपके इमोशंस के। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू गेट इट, एंड आल्सो आई वांट टू रिपीट वंस अगेन। पैरालिंग्विस्टिक मीन्स पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन रेफर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड हाउ वर्ड्स आर स्पोकन। Paralinguistic features are non-verbal communication, vocal cues that help us to give urgency to our voice. The various features that are useful to understand the characteristics, nuances of voice are: first is quality. In quality, we discuss here, it is a characteristic that distinguishes one voice from another. Each person has a unique voice, and its quality depends on its resonating mechanism. The quality of one's voice may be rich and resonant, soft and alluring, thin and nasal, harsh and irritating. Next number is very important. This is the example of paralinguistic. Point number 2, volume. Volume is the loudness or softness of the voice. One's voice should always project but need not always be loud. And third is rate.
it is the number of words that one speaks per minute. This is also very important, and it varies from person to person, and from 80 to 250 words per minute. And pitch refers to the number of vibration of voice per second, and the rise and fall of the voice conveys various emotions. So dear students, I hope you get it. So dear students, on 5 point our number in paralinguistics, 5 number point is articulation. Students, this is very important because in your examination it can be asked in short questions, because articulation and also pronunciation both are in, you can this question can be asked in your examination in short form. So the student, short note, two marks, टू इन शॉर्ट नोट्स ऑफ 2 मार्क्स, ये 2 नंबर के शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जा सकता है. सो स्टूडेंट प्लीज कंसंट्रेट. पॉइंट नंबर 5 दैट इज आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन मीन्स होता है क्या स्टूडेंट? आर्टिकुलेशन इज अ सेट ऑफ स्पीच हैबिट्स established over a long period. So it is basically the ability to modify voice or breathe with tongue, teeth, lips and other organism of speech in order to produce speech. So articulation और pronunciation अगर देखा जाए स्टूडेंट तो both are same, then both are similar but different, minor different. प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है. जैसे डी स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि अगर आप वेयर आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा, सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ये वेयर लोग बोलते हैं और इसी को हम वर भी बोलते हैं. बट जी स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे सही प्रोनाउंसिएशन वर होता है और जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वे वेयर करते हैं, बहुत लोगों में करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले बहुत प्रचलन होती थी. तो इस ये जो होता है नहीं वैरी कर देता है, यानी वेयर बोलने पे भी बच्चे लिख लेंगे. अगर यूपी बोर्ड के बच्चों से अगर हम बात करें जो मतलब छोटे मतलब क्लास के होते हैं, 9th 8th 9th में होते हैं, 7th में, उनको वेयर बोलोगे तो दे कैन बी अंडरस्टैंड. अगर आपने वर बोल दिया तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड सर ने क्या बोला है. तो ये हो गया प्रोनाउंसिएशन. और ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स? वैरी करता है, यानी पर्सन से पर्सन वैरी कर जाता है. बट आर्टिकुलेशन ऐसा नहीं होता है. आर्टिकुलेशन जो होता है एक सेट हो जाता है, ये हैबिट्स हो जाती है, यानी ये आदत पड़ जाती है हाँ कि यही हमको बोलना है, यही बोलते रहना है, यानी इसको वी कांट मॉडिफाई दिस. और आर्टिकुलेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन आवर ब्रीथ, टंग, टीथ, लिप्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. ये हमारे सारे सेंस ऑफ ऑर्गन पर डिपेंड करता है. तो हमारे जब सारे सेंस ऑफ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो हम यूज वहां पर कर लेते हैं, आर्टिकुलेशन के रूल को फॉलो कर लेते हैं. तो आर्टिकुलेशन और डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आप समझ सकते होंगे. तो आर्टिकुलेशन और प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तो आर्टिकुलेशन इज अ सेट ऑफ स्पीच हैबिट्स. एक आर्टिकुलेशन जो होता है एक स्पीच ऑफ सेट होता है, यानी स्पीच का एक सेट होता है, एक सेट होता है. आप जानते हैं सेट, आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा. सेट होता है उसमें जो होता है हैबिट्स को, कुछ हैबिट्स को इस्टेब्लिश करता है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उस हैबिट्स के सेट को इस्टेब्लिश करता है. और उसमें क्या होता है, और इसका जो सेकेंड डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली द एबिलिटी. ये एक बेसिकली एक टाइप का एक एबिलिटी होती है जो मॉडिफाई करता है, यानी उसको मॉडिफाई चेंज कर देता है. किसको? वॉइस को, ब्रीथ सांस को, विथ वॉइस और सांस, टंग जीभ को, टीथ दांत को, लिप्स को एंड अदर ऑर्गेनिज्म स्पीच इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पीच. मतलब और ऐसे जो होते हैं जो आर्टिकुलेशन में और ऐसे वर्ड भी होते हैं जो मतलब और ऐसे चीजें होती हैं जो इन चीजों को मॉडिफाई कर देती है आर्टिकुलेशन. बट प्रोनाउंसिएशन नहीं करता. प्रोनाउंसिएशन इन चीजों के हेल्प से उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपने बचपन में एप्पल पढ़ना सीखा होगा, तो आपने पहले एप्पल नहीं बोल पाना आता होगा आपको, तो आपने धीरे धीरे सीखा होगा एप्पल बोलना, तो आपने एप्पल बोलने लगा. आपने बॉल बोला, जेब्रा बोला, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसको आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं,
जब आप उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं तो आप उसको ब्रेक करते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। तो हमारा एग्जाम्पल होता है क्या, प्रोनाउंसिएशन का, बट आर्टिकुलेशन नहीं होता है। आर्टिकुलेशन आपका डिपेंड करता है इन सेंस ऑफ ऑर्गन पर, जो हमारे ब्रीथ पर। मान लीजिए कोई बड़ा वर्ड है, नहीं बोल सकता, तो you can't speak, that person can't be speak। तो वो हमारे डिपेंड करता है ब्रीथ पर, टंग पर, टीथ पर, लिप्स पर, ऑर्गेनिज्म पर। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी उन पर, यानी वो वर्ड उन्हीं के द्वारा, हेल्प के द्वारा वो प्रोड्यूस होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे वॉइस निकालना है तो ऐसे करना है, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, तो इन चीज़ों को हम हर जगह से नहीं निकाल सकते। तो आप इनको बोलने के लिए इन्हीं सारे सेंस ऑर्गन को आपको यूज करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू गेट इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, this video is so long, but I hope you can understand. So dear students, take care, have a nice day, have a good day, bye bye, and please stay home and save your life from deadly COVID-19. Thank you dear students, have a good day.